السلام علیکم ناظرین، 40 خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایسے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایسے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ اسکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، crafted just for you، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ریتو بندھو اسکیم کی رقم سنکرانتی تہوار کے بعد ادا کی جائے گی۔ سفید راشن کارڈ پر باریک چاول، ہر ماہ 6,500 کروڑ روپے حکومت سود ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی پریس کانفرنس۔ ملکو ضلع میں انکاؤنٹر، 7 ماونواز ہلاک۔ تلنگانہ میں سیکورٹی فورسز کی پہلی بڑی کارروائی۔ GHMC انتخابات میں کانگریس کو کامیاب بنانے کے لیے قائدین کام کریں۔ رائزنگ حیدرآباد پروگرام کے ذریعے وزیر اعلیٰ مختلف پروگراموں کا افتتاح کریں گے۔ پونم پربھاکر کا خطاب۔ 6 گارنٹیاں 66 دھوکے کے نام سے بی جے پی نے جاری کی چارج شیٹ۔ BRS اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے، کانگریس حکومت سے عوام مایوس۔ کشن ریڈی کی پریس کانفرنس۔ اور لنگر ہاؤس میں خوفناک سڑک حادثہ، 2 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ تیز رفتار کار نے موٹر بائیک اور آٹو کو دی ٹکر۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ سنکرانتی کے تہوار کے بعد کسانوں کے کھاتے میں ریتو بھروسہ کی رقم جمع کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کسانوں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ریتو بھروسہ جاری رکھے گی۔ سنکرانتی تہوار کے بعد کسانوں کو ریتو بھروسہ دیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ سفید راشن کارڈ پر باریک چاول تقسیم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے پروپیگنڈوں پر بھروسہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریتو بھروسہ پر نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا کی صدارت میں ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس پر اسمبلی اجلاس میں بحث کے بعد اس کے قواعد و شرائط کو قطعیت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپے تک قرض معافی کس طرح مکمل کی گئی ہے، اسی طرح ریتو بھروسہ اسکیم پر عمل کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ KCR حکومت 7 لاکھ کروڑ روپے کا قرض چھوڑ کر گئی ہے، جس کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد عہدیداروں نے اس کا خلاصہ کیا ہے، اس لیے حکومت نے آتے ہی وائٹ پیپر جاری کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت ہر ماہ
6,500 करोड़ रुपए सूद अदा कर रही है। इतने कर्ज के बावजूद हुकूमत हम चला रहे हैं। केसीआर के कर्ज माफी की रकम 7,625 करोड़ रुपए भी हमने अदा किए हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक किसानों को पहली तरजीह देने वाली पार्टी कांग्रेस है। 10 साल तक किसानों को धोखा देने वाली पार्टी बीआरएस है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किशन रेड्डी का तेलंगाना से क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अवाम से जो वादे किए थे और हमने जो वादे किए हैं, इस पर वो मुबाहिस के लिए तैयार हैं। ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రైతులకు మాట ఇస్తున్నా, సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత రైతు భరోసా మీ ఖాతాలలో వేసేది సోనియమ్మ గ్యారంటీ, ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వము. ఏ రైతులు ఎలాంటి మారీచులు సుబాహులు వచ్చి మీకు అబద్ధాలు చెప్పి ఆనాడు పురాణాలలో విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞం చేస్తుంటే రాక్షసులు ముఖ్యంగా మారీచుడు సుబాహులు వచ్చి ఆ యజ్ఞాన్ని భగ్నం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే రామలక్ష్మణులు ఎట్లయితే కాపలా కాసి విశ్వామిత్రుడు చేపట్టిన యజ్ఞాన్ని సంపూర్ణంగా పూర్తి చేసిండ్రో, ఈనాడు కూడా మా ప్రభుత్వము రైతు భరోసా కొనసాగిస్తుంది. సంక్రాంతి పండుగ తరువాత సోనియా గాంధీ గారి గ్యారెంటీగా నేను చెప్తున్నా, మీ రైతు భరోసా మీ ఖాతాలో పడుతుంది. ఎవరిని నమ్మకండి. ఇట్లాంటి మారీచులు మీ దగ్గరికి మారు వేషంలో వస్తూనే ఉంటారు. ఆనాడు సీతమ్మను ఎమర్చడానికి బంగారు లేడీ రూపంలో వచ్చిన మారీచుడే ఈరోజు మారు వేషంలో మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ బీజేపీల రూపంలో మీ దగ్గరకు వస్తారు. ఈ మారీచులను మీరు విశ్వసించకండి. సంక్రాంతి పండుగ తరువాత మీ రైతు భరోసా మీ ఖాతాలలో పడుతుంది. విధి విధానాలకు సంబంధించి మంత్రివర్గ ఉపసంఘం వేసిన బట్టి విక్రమార్క గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, ఇతర మంత్రుల చేత మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని విధి విధానాలను ఖరారు చేయడానికి వేసినాం. मुलुगु जिले के यटोरी नागराम में एक बड़े इनकाउंटर में 7 माओवादी हलाक हो गए हैं। यटोरी नागराम के जंगलाती इलाके में हिफाजती दस्तों और माओवादियों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया। इस वाक़े में 7 माओवादी हलाक हो गए। तेलंगाना ग्रेहाउंड्स और एंटी माओवादी स्क्वाड ने मुश्तरका कार्रवाई की थी। इस इनकाउंटर की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। पता चला है कि हलाक होने वालों में माओवादियों के अहम कायदीन भी शामिल हैं। एलंदू नरसिम्हापेट के एरिया कमेटी के सेक्रेटरी बदरू उर्फ पापन्ना के अलावा इसके गिरोह के अरकान भी हलाक हुए हैं। इस इनकाउंटर के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। तश्कील तेलंगाना के बाद माओवादियों की इतनी बड़ी तादाद इनकाउंटर में हलाक हुई है। तश्कील तेलंगाना से कबल ही तेलंगाना में माओनवाजों का असर कम हो गया था। ये पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ में सरगर्म हो गए थे। कबायलियों की गालिब आबादी वाले जिले मुलुगु में माओवादी का दोबारा मुनज़्ज़म होना बाइस तशवीश समझा जा रहा है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी के लिए पार्टी कायदीन काम करें। हैदराबाद में कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम की हुकूमत के जश्न के हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। 1 साल में हुकूमत ने जो प्रोग्राम किए हैं और हुकूमत की स्कीमात के बारे में अवाम में शऊर बेदार करें। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द डिवीज़न सतह पर पैदल दौरे किए जाएंगे। अवाम की हुकूमत के जश्न प्रोग्राम के तहत राइजिंग हैदराबाद के नाम से रेवंत रेड्डी हजारों करोड़ रुपए के प्रोग्रामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इस इजलास में एआईसीसी इंचार्ज देवदास मुंशी, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ के अलावा दीगर ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड स्टेट
एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने शहर में झील, तालाब, कुंटों और दीगर आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और उन पर गैर मजाज कब्ज़ों को ख़त्म करने हाइड्रा पुलिस स्टेशन कायम करने का ऐलान किया है। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ IPS ने अर्बन बायोडाइवर्सिटी की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद के 60% आबी वसाइल पर कब्जे हो चुके हैं। शहर के इन आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्क्स, खुले इलाके और लेआउट्स बनाए जाएंगे। इन वसाइल को नाजायज़ कब्ज़ों से महफूज रखने हाइड्रा की पुलिस होगी। इसके लिए हाइड्रा पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमीनपुर झील को मुल्क की पहली हेरिटेज झील के तौर पर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सनती फुजला और सीवरेज के जरिए शहर के आबी वसाइल को आलूदा कर दिया गया है। हाइड्रा रियासती हुकूमत की मुकम्मल मदद और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताउन से शहर में बायोडाइवर्सिटी के काम को आगे बढ़ाएगा। सदरनशीन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी C अशलिंदर रेड्डी ने कहा कि शहरी आबादी का मुल्क में तनासुब 32% है, लेकिन तेलंगाना में ये कौमी तनासुब से ज़्यादा है। उन्होंने शहरियों पर पड़ने वाले बोझ में कमी के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत जाहिर की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस की 6 गारंटियों के झूठ 66 धोखे के नाम से चार्जशीट जारी की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत और कांग्रेस हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे पूरे नहीं हो सकते उसका ऐलान करके इख्तिदार हासिल किया है। अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। 100 दिनों में वादा पूरा करने का ऐलान करके 1 साल मुकम्मल होने पर वादों को पूरा नहीं किया। किशन रेड्डी ने कहा कि यह हुकूमत 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत से अवाम मायूस हो रहे हैं। गुज़िश्ता 9 दिसंबर को किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया था। अब 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद कर्ज माफी मुकम्मल नहीं हुई। हुकूमत ने किसानों को रैतु भरोसा भी जारी नहीं किया। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के जहदकारों की ख्वाहिशात को पूरा करने में BRS नाकाम रही। 10 साल आमिराना हुकूमत, खानदानी हुकूमत और बदउनवान हुकूमत चलाई थी। अवाम ने BRS को इख्तिदार से बेदखल किया है, लेकिन BRS की तरह कांग्रेस भी काम कर रही है। दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। BRS पार्टी के साबिक वजीर S निरंजन रेड्डी ने कहा कि लागचरला में सनतों के लिए आराजी की निशानदही की गई थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई नई आराजी लेने की जरूरत नहीं है। पालमूर सरसब्ज शादाब है, अब कोई नकल मकाम करने वाला नहीं है। रेवंत रेड्डी नकल मकाम करने जैसे हालात पैदा न करें। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु के 7,500 रुपये दे नहीं सकते, अपने हाथ उठा लिए। किसानों को 30,000 करोड़ रुपए बोनस किस तरह देंगे। उन्होंने सवाल किया कि अब तक कितने किसानों को बोनस दिया गया है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि KCR दौरे हुकूमत में एनकाउंटर के वाकयात नहीं थे, तेलंगाना में दोबारा इसका आगाज हो रहा है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी अगर संजीदा हैं तो जहां सनतें कायम कर रहे हैं वहां की अवाम को रोजगार फराहम करें तो कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। रियासती वजीर J कृष्णा राव ने मुत्तहदा महबूब नगर जिले को सालाना 20,000 करोड़ रुपए मख्तस करने वजीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रोगल रामाकृष्णा राव के बाद 70 साल में पालमूर जिले से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स वजीर आला बना है। कृष्णा राव ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए दरकार फंड्स मख्तस करने का भी ऐलान किया है। रैतु पंडुगा कामयाब होने पर BRS कायदीन को नींद नहीं आ रही है। पालमूर किसानों के पानी की मुश्किलात दूर करने में BRS नाकाम रही है। पिछली हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से दौलतमंद रियासत मखरूज हो चुकी है। कांग्रेस हुकूमत हर माह 6,000 करोड़ रुपए सूद अदा कर रही है, वरना हुकूमत के पास रैतु बंधु और दीगर स्कीमात के लिए फंड्स की कमी नहीं होती। BRS पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में गिरफ्तारियां, पाबंदियां और इनकाउंटर्स हो रहे हैं तो हुकूमत
दूसरी तरफ 1 साल का जश्न मना रही है। हरीश राव ने ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत ने तमाम तबकात को धोखा दिया है, 6 गारंटियों पर अमलावरी नहीं की है, 7वीं गारंटी अवामी हुकूमत का ढोल बजा रहे हैं। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों के अक़ीदे का जुज़ है। जनूबी हिंद की मारूफ इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया निज़ामिया में नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनक़्क़दा एक रोज़ा सेमिनार से खिताब करते हुए उलमाए कराम ने इस बात का इजहार किया। अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल जामिया मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह, प्रोफेसर सैयद बदियुद्दीन साबरी, मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना सैयद सगीर अहमद नक्शबंदी, मौलाना हाफिज मोहम्मद लतीफ़ अहमद क़ादरी, मौलाना हाफिज मोहम्मद शबीर अहमद ने इस मौके पर मक़ालजात पेश किए। मौलाना मुफ्ती सैयद वाहिद अली ने प्रोग्राम की निज़ामत की। मोतमदे जामिया मौलवी अहमद मोहिउद्दीन खान ने शुक्रिया अदा किया। इस इल्मी सेमिनार में उलमाए कराम, मुहक्किकीन, असातिज़ा और तुलबा की कसीर तादाद शरीक थी। जमाते इस्लामी हिंद की तालिबात और लड़कियों की तंजीम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इतवार को नुमाइश मैदान नामपल्ली पर अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के बाद इख्तिताम अमल में आया। मुक़र्रिरीन ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन को आला मुक़ाम अता किया है, जबकि आज मुआशरे में आज़ादी निस्वां के नाम पर ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। मुक़र्रिरीन ने ख़वातीन को मशवरा दिया कि वो कुरान सुन्नत से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। मौलाना हामिद मोहम्मद खान, डॉक्टर खालिद मुबश्शिर ज़फ़र, मुबश्शिरा फ़िरदौस, आसिया तस्नीम, मसीरा फ़िरदौस और दीगर के अलावा बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए मेहमान मुक़र्रिर डॉक्टर ताहा मतीन और दीगर ने इस मौके पर खिताब किया। ख़वातीन व तालिबात और नौजवान लड़कियों ने हज़ारों की तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया के ज़र एहतमाम शहर में दीनी तालीमी रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ख़ानगी स्कूल्स के हज़ारों तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। रैली सुबह मक्का मस्जिद से बरामद हुई। चार मीनार पर मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने उलमाए कराम की मौजूदगी में इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली बराह गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, मदीना सर्कल, हाई कोर्ट से कुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंची, जहां रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और उलमाए कराम ने इसका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ स्कूल से वाबस्ता हज़ारों तलबा व तालिबात ने इस रैली में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। रैली के दौरान इस्लामी अक़दार, किरदार, उसवे हसना के मुख्तलिफ उन्वानात के साथ बैनर्स लगे हुए थे। तलबा अपने स्कूल्स की शनाख्त के साथ मजहबी व तहजीबी नारे लगा रहे थे। स्टेडियम में उलमाए कराम और कई अहम शख्सियात ने इस रैली से खिताब किया, जिनमें काबिल ज़िक्र मौलाना शाह आगा मोहम्मद कासिम अबुल आलाई, सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत मोहम्मद हुसैन क़िबला, मौलाना सैयद महमूद पाशा ज़रीन कला और दीगर काबिल ज़िक्र हैं। सदर मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम समदानी अली क़ादरी ने दीनी तालीमी रैली के गर्ज़ ग़ायत बयान की। मोतमद मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया मौलाना सैयद ग़ुलाम क़ादरी क़ुतुब हुसैनी फ़ातिमी ने शुक्रिया अदा किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिस के पार्टी ऑफिस हकीम पेट में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। चेक्स की जुमला मालियत ज़ायद 1,14,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। दारुस्सलाम में रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए, जिससे 52 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने मजलिस की जानिब से मौसर नुमाइंदगी करके चेक्स जारी करवाने पर इजहार मसरत करते हुए रियाजुल हसन आफंदी और मोहम्मद आसिफ की गुलपोशी की। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में आज खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक
और 4 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात 10 बजे शराब के नशे में धुत लंगर हाउस से मेहदीपट्टनम जाने वाले कार ड्राइवर ने तवाजुन बिगड़ने से एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी और फिर इसके बाद एक ऑटो को टक्कर दे दी। इस वाक़े में मोटर बाइक पर सवार मियाँ बीवी हादसे में हलाक हो गए, जबकि ऑटो में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद मुकामी अवाम ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया। बाद में उसको पुलिस के हवाले किया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि अगर पुलिस और 108 एम्बुलेंस वक्त पर आ जाती तो हलाक होने वाले और जख्मियों को बचाया जा सकता था। जाए हादसे के बिल्कुल करीब पुलिस स्टेशन वाक़े है, लेकिन पुलिस बर वक्त पहुंचने में नाकाम रही। इस हादसे के ऐनी शाहिद बाइक सवार जुबैर, जो इस कार की जद में आने से बाल बाल बच गए थे, ने हादसे के बाद पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन ना तो पुलिस पहुंची और न ही एम्बुलेंस। उन्होंने राहगीरों को पुकारते हुए इकट्ठा किया और मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी दिनेश, मीना और दीगर जख्मियों को ऑटोज में डालकर दवाखाना रवाना किया। दवाखाना ले जाने पर डॉक्टर्स ने दिनेश को मुर्दा करार दिया। उनके साथ सवार खातून मीना जाए हादसे पर ही हलाक हो गई थीं। ऑटो सवार 4 जख्मियों का इलाज जारी है। कार ड्राइवर की शनाख्त प्रणय की हैसियत से की गई है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रैतु बंधु स्कीम की रकम संक्रांति त्योहार के बाद अदा की जाएगी। सफेद राशन कार्ड पर बारीक चावल, हर माह 6,500 करोड़ रुपए हुकूमत सूद अदा कर रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलुगु जिले में इनकाउंटर, 7 मावनवाज हलाक। तेलंगाना में सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली बड़ी कार्रवाई। जीएचएमसी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए कायदीन काम करें। राइजिंग हैदराबाद प्रोग्राम के जरिए वजीर आला मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। पूनम प्रभाकर का खिताब।
6 गारंटियां 66 धोखे के नाम से बीजेपी ने जारी की चार्जशीट। बीआरएस और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस हुकूमत से अवाम मायूस, किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और लंगर हाउस में खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। तेज रफ्तार कार ने मोटर बाइक और ऑटो को दी टक्कर। और नाज़रीन, इसी के साथ छोटी हुई खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।